Hello everyone. Today we are going to do the chapter Dr. Fastus by Christopher Marlowe, and that is DUSOL semester 2 subject from 16th and 17th century English drama. हम इसको थोड़े बहुत फ्लो चार्ट्स एंड बहुत ही क्विक रिवीजन के थ्रू करेंगे. दिस इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कि आप पूरा ड्रामा पढ़ लोगे इसमें, बट फॉर द रिवीजन पर्पस इफ़ यू हैव नथिंग डन येट, बट अगर आपने इसको थोड़ा बहुत वीडियो को सही से सुन लिया, you can write by your own. So first of all, this unit tells about the playwriter Christopher Marlowe, the things that had been here, like क्रिस्टोफर मॉर्लोवे ने जो है क्या काम किए हुए हैं. सो ही इज़ वेरी फेमस एलिजाबेथियन प्ले राइटर. ही हैज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर. ही इज़ अ मॉडर्न शेक्सपियर दैट हैज़ बीन सेड. He has one of the university wits. He wrote about the ambitious heroes. Ambitious hero वो ऐसे heroes के बारे में लिखते थे जो बहुत ही ज़्यादा ambitious थे, and he used very powerful blank words in English drama. So that had been written there. You can write in your notebooks too for the revision purpose, or if you want notes, please let me know in the comment sections. I'll be providing it from the next time, or I'll be providing it anyhow. How I can help, I'll do that. So what is the famous work of Christopher Marlowe is Tamburlaine is also one of the famous work, but most famous work is Dr. Fastus. ठीक है. और the third famous work is The Jew of Malta. So what about Dr. Fastus? This is about Christopher Marlowe, the playwriter जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. लेकिन डॉक्टर फास्टस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो अब हम देख सकते हैं. दैट इट इज़ अ ट्रेजेडी रिटन ड्यूरिंग द रेजिडेंस पीरियड. रेजिडेंस पीरियड इज़ अ पीरियड ऑफ रिवाइवल रीबर्थ ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड न्यू एंड इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ द पीपल. उस टाइम पे जब मोनार्की ख़त्म हुई थी तब का टाइम का पीरियड है. रिस्टोरेशन या फिर रेजिडेंस पीरियड हम इसे कहते हैं, and that is totally written during that period. So this is a tragedy. Tragedy is a serious play जिसके अंदर हीरो का डाउनफॉल हो जाता है लास्ट में. So that is tragedy. So it shows uncontrolled ambition and pride of highly educated scholar led to the downfall. एक ऐसा स्कॉलर जो बहुत ही अच्छी एजुकेशन जिसके पास थी, बट क्योंकि ही हैज़ अ ट्रैजिक फ्लॉ, क्योंकि ट्रेजिडी में ट्रैजिक फ्लॉ होता ही होता है, तो ट्रैजिक फ्लॉ के कारण डाउनफॉल हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एंड दैट इज़ अनकंट्रोल्ड एम्बिशन एंड प्राइड. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूबरिस. So that is about the Dr. Fastus drama. This is very small, precise. So let's move on to the story. The story about Fastus. Fastus ने जो है 4 accordingly this इन सब में जो है महारत हासिल कर रखी थी. He is known for these as a scholar. So as I said, he was very highly educated, so he has very much logic knowledge, law knowledge, medicine knowledge, and theology knowledge. Theology means education or study related to the religion. So that makes him a brilliant scholar, educated scholar. लेकिन उसको इसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी फील होता था, डिससेटिस्फाई फील होता था, और यही एक पॉइंट बन गया जहाँ से ट्रेजेडी स्टार्ट हो गई और उसका डाउनफॉल स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया. उसको ऐसा लगा कि वो इतना एम्बिशियस था, इतना प्राइड था कि उसको ऐसा लगा कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं रह सकता. अगर उसको ये 4 जो चीज़ें हैं वो किसी को भी आ सकती हैं, जो कि उस टाइम पर बहुत इम्पॉसिबल सी थी, लेकिन उसके लिए ऐसा था कि अगर मैंने ये हासिल कर लिया तो ये कुछ भी नहीं है, मुझे तो और आगे जाना है और अपनी नॉलेज को गेन करना है. तो इसीलिए आई वॉन्ट टू चूज़ द पाथ that is very sinful yet gives him very power and knowledge. So यहाँ से start होता है tragedy. So he chooses necromancy. So he chooses necromancy, that is basically black magic, that is considered very sinful. That is, he only choose this
path of black magic, of these sinful path, because he just want to become famous, all knowing, powerful and wealthy. जैसा कि मैंने कहा उसको, he was very ambitious. So although he meets Mephistopheles, that is a devil. He performs magic rituals, black magic rituals basically. So he does that, and वो जो डॉक्टर फेस्टस हैं वो इनसे मिलते हैं और कुछ रिचुअल्स जो है दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं, ये डेविल भी और डॉक्टर फेस्टस भी. सो इसी इन्होंने ही जो है उनका कॉन्टैक्ट बनाया, एज द एरो सजेस्टेड. उन्होंने ही जो है मेफिस्टोफल्स ने ही जो है, डेविल ने ही जो है फेस्टस का कॉन्टैक्ट बनाया विद द रूलर ऑफ द हेल, दैट इज़ लूसीफर. लूसीफर के साथ इनका कॉन्टैक्ट बना, एंड ही अगेन चूजेस दिस पाथ टू बी कंटिन्यूड. सिर्फ रिचुअल्स करने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली, उसने कहा नहीं, आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस. सो उन्होंने और लूसीफर और फेस्टस ने जो है एक पैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, वो भी अपने ब्लड के साथ. यहाँ पे ब्लड एक्चुअली ब्लड से मतलब नहीं है, इट मीन्स हेयर ब्लड मतलब है यहाँ पर द कमिटमेंट ऑफ फेस्टस टू बी इन दिस सिंफुल पाथ. सो एग्रीमेंट ये था कि 24 ईयर्स तक जो है ब्लैक मैजिक की पावर्स जो है, मैजिकल पावर्स जो है फेस्टस के पास रहेंगी. आफ्टर 24 ईयर्स जो सोल है वो लूसीफर यानी रूलर ऑफ द हेल को बिलोंग करेगा, यानी कि लूसीफर आएंगे और उनके सोल को ले जाएंगे. दैट मीन्स बेसिकली नॉट दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे, दैट मीन्स लूसीफर जो है क्या करेंगे, उनके सोल को बेच देंगे. सो यस, फेस्टस, डॉक्टर फेस्टस जो इतने हाईली एजुकेटेड थे, दिस इज़ हैड अ वेरी वास्ट कॉन्ट्रास्ट कि इसी चीज़ों में जो है एजुकेटेड पीपल उस टाइम से जो है इन्वॉल्व होते हैं. तो हाँ, उन्होंने जो है अपनी सोल को बेच दिया, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द प्ले. नाउ फेस्टस वेस्टेड पावर ऑन द एंटरटेनमेंट पर्पसेस. उन्होंने ये काम क्यों किया था, उनको वाई ही वॉन्टेड टू बिकम वेरी पावरफुल, ही वॉन्ट टू बिकम पावरफुल फॉर टू गेनिंग नॉलेज, टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बट उन्होंने इस पावर को भी, जो उनको 24 साल के लिए मिली, उन्होंने इस पावर को एंटरटेनमेंट और स्मॉल प्लेजर्स के लिए वेस्ट कर दिया. एंड दैट शोज़ ए रियली पुअर जजमेंट ऑफ फेस्टस, एज ही डिडंट वेंट टू द ग्रेट अचीवमेंट. उन्होंने कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं करी इससे, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस ड्रामा के अंदर. सो ही ट्रैवल्स, just meets king, emperors and makes magic shows, summons some famous historical figures. He does these things only. He didn't achieve anything great. He just wasted their power. Next is he had a chance to go back to God and repent. यानी कि वो चाहे तो वापस सही रास्ते पर चल सकते थे और उनको ऐसे बहुत बारी चांसेस मिले, बट व्हाट ही डज इज़ नो, उन्होंने बार बार रिपेंटेंस को जो है डिले करते गए और गुड एंजल को इग्नोर करते गए, कंसाइंस को इग्नोर करते गए, गुडनेस को इग्नोर करते गए और ईवल एंजल की बात सुनते गए, जो कि टेम्पटेशन को शो करता है और सिन को कंटिन्यू करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है. ईवल एंजल की उन्होंने बात सुनते रहे. So what do you think would be the final scene of Dr. Fastus after 24 years? Yes, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, रिग्रेट करते हैं, गिल्ट में जीना स्टार्ट कर देते हैं और उनको बहुत बुरा लग रहा होता है इस बात का कि उन्होंने जो उनके पास चांसेस भी आ रहे थे गुड एंजल के द्वारा, उन्होंने उसको भी जो है कंटिन्यू करने का नहीं सोचा कि अब तो शायद वो अच्छे रास्ते पर चले. बट ही ओनली वॉन्ट्स मर्सी, वो मर्सी के लिए आस करते हैं उन पर दया कर दे कोई तो, लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुका है. डेविल टेक हिम टू द हेल एंड ही सेल हिज सोल just for the entertainment and small pleasures. This drama also tells that people often use this people often for just small pleasures and small entertainment wasted their whole life, just like we do doom scrolling on the Instagram just for our entertainment purposes, but we are wasting our very precious golden time. So now let's do the character analysis. After every drama we are going to do that. So character analysis
tells us about Dr. Faustus firstly, that is, he is very greedy, ambitious, yet educated and proud. He has both negative and positive qualities. So he is a tragic hero. Why he is a tragic hero? Because he has tragic flaw. Tragic flaw is hubris. He has excessive pride, overconfident, and that led him to the destruction. So it is a reason of downfall. So second character is Mephistopheles, that is a servant to whom? Servant to Lucifer, and makes contact of Lucifer to the Faustus. So servant of Lucifer warns and helps Faustus about serving of the hell later. इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो मेफिस्टोफिल्स है, जो लूसीफर को ही सर्व कर रहे हैं, वो जो है फास्टस को बार बार बताते हैं ही नीड्स टू नॉट टू डू दीज थिंग्स, और हेल की सफरिंग बहुत डेंजरस हो सकती है उसके लिए, लेकिन ही डिडंट अग्रीड टू दैट. मतलब सही बात तो ये है कि डॉक्टर फास्टस के पास बहुत चांसेस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि वो इस रास्ते से बच जाए, बट just for the pleasure, just for the entertainment, he does the sinful path. So he walks on the sinful path, right? Next character is Lucifer, basically king of hell, ruler of hell, and he is also a symbol of evil and temptation that shows for a very small time. For longer term, it will only giving them sin, nothing else. So what are the central themes of this drama? Central themes of this drama is ambition, ambition that had of like ambition किसका था सबसे ज़्यादा? Obviously डॉक्टर फास्टस का बहुत ambition था. Next is knowledge and power. Knowledge and power जो है, अगर कंट्रोल ना की जाए विजडम और मोरालिटी के द्वारा, तो क्या होगा? अगर विजडम, समझदारी के द्वारा और अपनी मोरालिटी के द्वारा अगर उसको नॉलेज और पावर को नहीं कंटिन्यू किया जाए, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, एंड एज वी सी डाउनफॉल होगा ही होगा. गुड वर्सेस ईवल की सेंट्रल थीम हमें देखने को मिली. गुड एंजल, बैड एंजल, कंसाइंस, सिन, टेम्पटेशन. अगेन सिंस एंड रिपेंटेंस की आप वापस जा सकते हो गॉड की तरफ, अपॉर्चुनिटी है, अपने सिन को कंटिन्यू रखो. नेक्स्ट central theme was fate. Fate was deciding that he would become very wealthy, he would have very good lifestyle, but free will, that having no use of wisdom, he does the sin, right? नेक्स्ट इज एज अ रेजोनेंस हीरो. हमने ट्रैजिक हीरो की तरह तो डॉक्टर फास्टस को देख लिया. व्हाट अबाउट द रेजोनेंस हीरो? हमने डॉक्टर फास्टस को एज अ ट्रैजिक हीरो की तरह तो देख लिया, बट व्हाट अबाउट द रेजोनेंस हीरो? रेजोनेंस का मतलब मैंने शुरुआत में ही बताया था, रीबर्थ और रिवाइवल. सो इंकरेज लर्निंग एंड अचीवमेंट टू फास्टस विद द हाई एम्बिशन. यानी कि रेजोनेंस उस टाइम पर रीबर्थ हो रहा था इंडिपेंडेंट थॉट्स का, एम्बिशन का, टू कंटिन्यू टू हैव अ क्रिएटिव पार्ट, टू हैव अ इंडिपेंडेंट पाथ. तो उसी एम्बिशियस पाथ को जो है रेजिडेंस पीरियड के अंदर काउंट किया जाता है, बिकॉज दैट इज़ द रीबर्थ ऑफ द पीपल, रीबर्थ ऑफ देयर थॉट्स, देयर आइडियाज़, देयर फ्रीडम टू डू द थिंग्स, राइट, एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर फास्टस. वो बहुत वेल्दी, बहुत नोइंग, बहुत नॉलेजेबल होना चाहते थे, येट उनका ये जो एम्बिशियस पाथ है वो उनको डिस्ट्रक्शन की ओर, डाउनफॉल की ओर ले जाता है. So this was the conflict between these things. So the symbols are blood, that is shows commitment, angels that shows the conflict, good or bad के between, and clock shows the passing time, death of Faustus approaching. 24 years बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं Faustus के लिए, because the clock never stops for anyone. So last one more keyword that is important is damnation. That shows that had a very simple meaning is punishment in the hell. जो भी punishment मिली जाती है hell के अंदर, नर्क के अंदर जो भी दंड दिया जाता है, उसे हम damnation कहते हैं. So that's it for today, and that's it for this chapter, Dr. Faustus by Christopher Marlowe. And hope you liked it. Please subscribe to my channel, The Milestone Stories, and like the video for future BA Honors English videos. Thank you.